I recognized the roles that were placed on me very early. One persistent concept that I observed existing in our language, in our media, was that women are not only supposed to have children, they are supposed to want to. This existed everywhere. It existed in the ways that adults spoke to me when they posed questions in the context of when you get married, when you have kids. And these future musings were always presented to me like part of this American dream, but it always felt to me like someone else's dream. You see, a value that I have always understood about myself was that I never wanted children. And as a kid, when I would try to explain this disconnect between their roles and my values, they often laughed in the way that adults do at the absurdities of children. And they tell me knowingly, you'll change your mind. And people have been saying things like that to me my whole life. Otherwise, polite conversation can turn intrusive fast. Does your husband know? Do your parents know? Don't you want a family? Don't you want to leave anything behind? And मेरे इर्द गिर्द का माहौल और मुआशरा मुझ पर जो जिम्मेदारियां डालना चाहता था वो मुझे जल्दी समझ में आ गई थीं। एक तसव्वुर जो मुस्तकिल मौजूद है, जो हमारी बोलचाल में, हमारे मीडिया में मौजूद है, वो ये था कि ख़वातीन को न सिर्फ बच्चे पैदा करने चाहिए बल्कि इनके अंदर इसकी ख्वाहिश लाजमी होनी चाहिए। ये तसव्वुर हर जगह पाया जाता है। ये इस अंदाज में मौजूद है कि जिस अंदाज में मेरे बड़े मुझसे बात करते थे, वो जब के अंदाज में सवालात करते थे। जब तुम शादी करोगी, जब तुम्हारे बच्चे होंगे। और मुस्तकबिल की ये धुन हमेशा मुझे इसी अमरीकी ख्वाब की तरह पेश की जाती थी, लेकिन ये हमेशा मुझे किसी और का ख्वाब महसूस होता था। असल में एक बात जो मैंने हमेशा अपने बारे में समझ ली थी, वो ये थी कि मैंने कभी बच्चे नहीं चाहे। और बचपन में जब मैं उनको समझाने की कोशिश करती कि इनकी और मेरी सोच में फर्क है, तो वो अक्सर इस तरह हंसते थे जैसे बड़े बूढ़े बच्चों की किसी अहमकाना बात पर हंस पड़ते हैं। और वो मुझे बड़े यकीन से कहते, तुम अपनी सोच बदल डालोगी। और लोग सारी जिंदगी मुझसे ऐसी बातें करते रहे हैं। बसूरत दीगर जो गुफ्तगू शाइस्ता हो, वो तेजी से जाती किस्म के सवाल जवाब की तरफ निकल पड़ती है। क्या तुम्हारे शौहर को मालूम है? ही हा हा ही हा हा। क्या तुम्हारे माँ बाप जानते हैं? ही हा हा ही हा हा। क्या तुमको फैमिली नहीं चाहिए? क्या तुम कुछ दुनिया में पीछे नहीं छोड़कर जाना चाहती? And the primary buzzword when discussing childlessness, that's selfish. There are countless reasons a woman may have for choosing to abstain from motherhood. The majority of them not self-prioritizing. But it is still socially acceptable to publicly vilify women as such, because none of these reasons have made it into the social narrative. When I was little and learning about the inevitability of maternity, it was never explained to me the commonness of these factors that women consider, like the risk of passing on hereditary illness, the danger of having to stop life-saving medication, the duration of your pregnancy, concern about overpopulation, your access to resources, and the fact that there are 415,000 children in the foster care system in the United States at any given time. Introducing.
और बे औलादी पर बहस करते वक्त बुनियादी नुक्ता ये होता है कि ये खुद गर्जी है। औरत के पास बच्चे पैदा न कराने की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से ज्यादातर का खुदगर्जी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आम तौर पर खवातीन की तौहीन करना अब भी मुआशरे में काबिले कबूल है, क्योंकि ये जो वजूहात मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी कहीं सुनी नहीं जाती। जब मैं छोटी थी और हर तरफ मुझको यही बताया जाता कि बच्चे पैदा कराना तो लाजमी है, मुझे कभी भी उन वजूहात के बारे में नहीं बताया गया जिनके बारे में खवातीन सोच विचार करती हैं, जैसे कि मौरूसी या खानदानी बीमारी का खतरा, हमल के दौरान जिंदगी बचाने वाली दवाइयों को रोकने का खतरा, ज्यादा इंसानी आबादी के बारे में परेशानी, वसाइल तक आपकी रसाई, और ये हकीकत कि अमेरिका में किसी भी वक्त सरकारी निगहदाश्त के निज़ाम में 4,15,000 बच्चे मौजूद हैं। Reasons like these, many more, and the fact that I don't like to leave things of this magnitude to chance, all informed my decision to become surgically sterilized. I began my research eagerly. I wanted to fully understand all that was going to come with undergoing a tubal ligation, which is just another word for getting your tubes tied. I wanted to know approval to aftermath, satisfaction rates, risks, statistics. And at first I was empowered. You see, the way the narrative has always been taught to me, I would have thought that women who didn't want children were so rare. And then I learned 1 in 5 American women won't be having a biological child. Some by choice, some by chance. But I was not alone. But the more I read, the more disheartened I became. I read women's stories trying desperately to get this procedure. I learned how common it was for women to exhaust their finances, appealing to dozens of OBGYNs over many years, only to be turned down so many times, often with such blatant disrespect, that they just gave up. Women reported that medical practitioners were often condescending and dismissive of their motivations, being told things like, "Come back when you're married with a child." But women who did have children, who went to go get this procedure, were told they were too young, or they didn't have enough children, which is very interesting because the legal requirements in my state for getting this kind of surgery were be at least 21 years old, pure of sound mind, acting of your own accord, and have a 30-day waiting period. And I was perplexed that I could meet all of these legal requirements and still have to face a battle in the exam room for my bodily autonomy. And it was daunting. But I was determined. I remember इस तरह की वजूहात और फिर कुछ और बातें, और ये हकीकत कि मैं इस तरह के मामलात को आखिरी मौके पर छोड़ना पसंद नहीं करती, तो इस सब के नतीजे में ये फैसला किया कि मैं ऑपरेशन करा के अपना मां बनने का इम्कान ही खत्म कर दूंगी। मैंने बेताबी से तहकीक शुरू की। मैं इन तमाम चीजों को पूरी तरह समझना चाहती थी जो एक ट्यूबल लंगेशन से गुजरने के साथ आने वाला था, जो कि ऐसा ऑपरेशन है जिसके जरिए खवातीन का हमल होने से ही रोक दिया जाता है। मैं इस ऑपरेशन के हवाले से नताइज, इत्मीनान की शरह, खतरात, आदादो-शुमार वगैरह जानना चाहती थी। और शुरू में मुझे लगा कि मैं बाइख्तियार होती जा रही हूं। असल में जिस तरह से कहानी मुझे हमेशा से सिखाई गई है, मैं सोचती थी कि जो औरतें बच्चे नहीं चाहती थीं वो कम तादाद में हैं, और फिर मुझे पता चला कि 5 में से एक अमरीकी औरत के यहाँ कुदरती बच्चा नहीं होगा, कुछ की अपनी मर्जी से और कुछ का इत्तेफाक से। तालियां 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 तालियां। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। लेकिन मैं जितना ज्यादा पढ़ती गई
उतना ही मायूस होती चली गई। मैं इन खवातीन की कहानियां पढ़ती रही जो ये ऑपरेशन कराने के लिए ख्वार होती रही हैं। मुझे पता चला कि खवातीन के लिए ये कितना आम था कि वो कई साल तक दर्जनों डॉक्टरों की मन्नतें करते हुए अपने पैसे बर्बाद कर देती थीं, मगर उनको इतनी बार ठुकराया गया, अक्सर ऐसी शदीद बेइज्जती के साथ कि उन्होंने हार मान ली। खवातीन ने बताया कि तिब्बी माहिरीन अक्सर उनके फैसले को झुटलाते और मुस्तरद कर देते थे और उन्हें ऐसे जुमले कहते कि जैसे जब आपकी शादी और बच्चे हो जाएं तो वापस आ जाएं। लेकिन जिन खवातीन के बच्चे थे जो ये ऑपरेशन करवाने के लिए गई थीं, उन्हें बताया गया कि वो बहुत कम उम्र हैं या उनके बच्चे कम हैं, जो कि बहुत दिलचस्प है क्योंकि मेरी रियासत में इस किस्म का ऑपरेशन करवाने के लिए कानूनी तकाजे थे। कम से कम 21 साल की उम्र, सेहतमंद होना, अपनी मर्जी से फैसला करना और 30 दिन का इंतजार करना। और मैं परेशान थी कि मैं इन तमाम कानूनी तकाजों पर पूरा उतरती हूँ और फिर भी मुझे अपनी जिस्मानी खुद मुख्तारी के लिए डॉक्टरों से एक जंग का सामना करना पड़ता है। और ये सब कुछ मुश्किल था, लेकिन मैं पुरअज़म थी।